Good morning, sir. Good morning. How are you? I'm good, sir. So, so shall we start the session now, Yes, you can start. or we can wait for more people to join? I request everyone if you can switch on your cameras. So ये अच्छा रहेगा. So let's start the session. Good morning, everyone. Welcome from Always Live Yoga. I'm Divi. एंड आप सबको रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड आज का दिन जो है वो ऑस्पिशियस होता है. सो वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी important thing with yoga for anti-aging, which everybody would like to look young. And Today we have our speaker, Dr. BK Bandre. Sir is our advisor of Always Live Yoga program. Sir is. Uh, can you hear me, everyone? Yes, ma'am. Huh. Okay. Okay. Thank you. So I was just introducing Sir that Sir is 40 years of experience in yoga and yoga therapies, and Sir is an advisor of Always Live Yoga. Sir is an author also, and he is associated with many big organizations, government and non-government as well, and internationally also. Sir is very renowned teacher, and Sir is the biggest example of when we were thinking about this topic, and I just thought about Sir only. क्योंकि सर जो है actually look very young and very dynamic and very happy person. I know him from very long time, and sir, shall we start? Yes, we can start. Good morning, all of you. Yes, And please, sir. रामनवमी की शुभकामनाएं आप सबको. और आज का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. और ये टॉपिक डिसाइड हुआ है कि मेरी एज में मैं उतना बूढ़ा नहीं दिखता हूँ. आप कैसे जवान हो? हाउ यू फील लुक यंग and dynamic. So I said I am practicing yoga for last 50 years. At the age of 25, I started practicing yoga. As a student of yoga in university, first year and second year, and then post graduation. So done yogas. So by the time I was 25, till then I am continuing with yoga myself practicing. Without practicing, I don't teach others. This is my principle. Every morning I do asana, pranayam, and dhyan. Then I stick with my diet so that I keep my weight maintained, not increasing, not decreasing. My all parameters of my blood test and related tests shows everything is absolutely without medicine. So this is because of I take care of my body, mind, and my rest. So today's topic is how we are getting aging and we can prevent. Can we prevent with yoga and lifestyle? So this is so we should know what is age, how aging takes place. After 30, 35 years, after grown up your body, जब आप 35 के हो जाते हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू होते हैं. देन इट स्टार्ट्स योर डिजेनरेशन, यानी एजिंग होना शुरू हो जाता है. After 35, you feel some problems. Problem means something going inside the body and mind, which takes you to degeneration condition or aging. So, so aging, as you know, that your wrinkles on the face and body, skin pale, weakness in body, and many other symptoms of aging. Or you don't get sleep, or you get too much of sleep, something. So we categorize aging in two sections scientifically. The first section, पहला है
हमारा एजिंग होने का एक्सटर्नल रीजन, सॉरी इंटरनल रीजन, हमारा इंटरनल बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं जिससे हम एजिंग, बूढ़े होने लगते, एज होने लगते। तो सबसे पहले हमारा क्या, बॉडी में हार्मोनल चेंज होता है। ये मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके सबके हार्मोन चेंज होते हैं। तो हार्मोन डिटोरिएट होने लगते हैं, दे डोंट इनफ प्रोड्यूस देयर फंक्शन एंड क्वांटिटी वाइज, सो डिजनरेशन स्टार्ट प्लेस। तो हार्मोन में कौन सा, एस्ट्रोजन, फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन, testosterone, and many other hormones get not sufficiently produced by the body. So you find that some problem accordingly can be experienced. हम एस्ट्रोजन कम हो जाएंगे तो क्या होगा, महिलाओं के चेहरे पे बाल उग आएंगे और बूढ़े लगने लगेंगे, स्केल पीन हो जाएगी। प्रोजेस्टेरोन आते हैं तो आपका पीरियड ठीक होगा, और यदि एक्सेसिव है तो टू मच ब्लीडिंग होगा तो हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा, देन यू विल डिजेनरेट फेस, आपका फेस, स्किन, मसल सब डिजेनरेट होगा। So hormones are responsible to remain in the proper quantity produced by the body. But it won't happen. Therefore, you start aging. Then do the second thing, the oxidative stress. Hormonal changes is one. The oxidative stress. What is that? Free radicals. When you breathe in and breathe out, some oxygen is remaining inside the muscle and the blood and body. That is called free molecule of oxygen, called antioxidants. They are oxidants. They degenerate your body. If they are damaging your DNA, you may get cancer also, any other serious. So they degenerate the tissues, free radicals, damaging your tissues, cells, and you feel aging, or your symptoms are there. Sometimes it damages the DNA also, if they are very powerful. And aging takes place very fast, very dynamically, and the repairing takes place very long time, or sometimes mechanism for repairing is weaker or not enough. तो हम लोग जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। तो हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की एक बचाव, रेसिडुअल ऑक्सीजन होता है। जैसे कार चलती है तो पावर बनता है और उसको पेट्रोल जलता है, पर पीछे क्या निकलता है, धुआं निकलता, दैट इज ऑक्सीडाइज, वो है खराब। तो हमारे सांस के बाद हम बाहर सांस फेंक देते हैं तो कुछ रेसिडुअल ऑक्सीजन होता है, उसका नाम है ऑक्सीडेंट। और ये ऑक्सीडेंट हमको डिजेनरेट करते हैं, हमारे सेल को डैमेज करते हैं, टिश्यू को डैमेज करते हैं, और हमारे बॉडी के जो कोलेजन्स है और फ्लैक्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी कम कर देते हैं। कोलेजन होते हैं तो हमारे आर्टरीज और वेन्स में डिजेनरेशन पैदा होता है, कोलेजन प्रोड्यूस नहीं करने देते। तो फ्री मॉलिक्यूल्स जो है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इनसाइड द बॉडी कंटिन्यूज एंड यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग एंड यू गेट एजिंग, some problems accordingly, like knee pain, shoulder pain, or any joint pain that may be occurs if the free radicals are not cancelled by your lifestyle. So we'll see what is the lifestyle to correct it. DNA damages and reduce the repairing mechanism. Even loss of collagen and flexibility goes up. For flexibility of body is required elasticin, hormone produced by the body is elastin, and collagen. Collagen makes you are practicing yoga for many days and years, but your head is not touching with these. What is the problem? The flexibility is reduced. So, elastin is not produced by the body, and collagen is also reduced. So these are the factors which may improve your flexibility. If you are flexible, then you are less aging. In Chinese phrase, they say flexible backbone is a longer life. So if you want to increase your age, you should be as much as flexible at the age of 12 years. If you touch the head on the knees, means your flexibility is excellent. But it is not possible. Even sitting cross-legged is difficult nowadays. So many collagens and elasticin are reduced in our body because of oxidative stress.
skin loses, detone the skin and wrinkles can be experienced. Elasticity is disappeared. That is the symptoms of external aging. External aging. Now, no, sorry, internal aging. Internal. Then in external aging, this is what I have explained you: collagen, oxidative stress, and hormonal changes. This is all internal aging. Then external aging, exposure to the sun for longer time than required. Ultraviolet rays may degenerate you. Your face may look like a very old person. So you should have the sunrise vitamins and you can expose to the sun, but not the strong like दोपहर के 12 ultraviolet rays नहीं आपके बॉडी पे पड़ने. Right. That also leads to aging. Poor diet में क्या है? Low salt, high sugar, low salt. Flexibility is disappeared because of the excessive salty food. If you reduce the salt to few days for minimize as much as you can, you will find your flexibility is increased. ये जो नमकीन खाते हैं हम, नमक, अचार, पापड़, चटनी, ये सब हमको स्किप कर दे. और some other food like imli, amchur, curry, these are the food which makes you more aging. Poor diet, chronic stress. अब बाहर से, if you have some continuous stress from outside, for example, you are struggling for your progress, or you are not getting enough money, or you are unable to manage the household working, or balancing in the working and house working and working in the office. You are unable to balance sometimes. Then stress will be there, which degenerate your body, desensitize your body. High sensitivity of the brain increases and you feel more irritated. That leads to stress. Stress will improve your aging process. A physical activity. Many people are having so many supporting hands, so they don't need to do any activity. Even they don't do exercise unless they have no problem and not advised by the doctor. तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, सब काम हो रहा है तो अपन क्यों करें, बैठे. तो उसमें एजिंग होता है. यू शुड बी एक्टिव एंड फिट फिजिकली. काम हो चाहे ना हो, आपके पास दूसरे लोग काम करने वाले हैं तो आप एक्सरसाइज करो, स्विमिंग करो, वॉकिंग, जॉगिंग, whatever you like you can do. Lack of physical activities भी leads to aging. And one more, poor sleep. सब कुछ है, अच्छा बेड है, एसी लगा है, सब कुछ है आपके पास, पर यू डोंट गेट स्लीप. ये भी आपको एजिंग करेगी. देन टॉक्सिन्स, हमारे बॉडी में जो डेफिकेशन अच्छा नहीं, वो भी एजिंग कर. पेट साफ नहीं होता, आप खाना खाते हो, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिक रेट पुअर है, तो आपका खाना पचता नहीं देर से, और फिर डेफिकेशन भी नहीं होता है, पेट साफ भी नहीं होता, तो वो भी एजिंग के कारण बनता है. और उसके अनुसार बहुत सारे रोग बनते हैं. वो टॉक्सिन्स ब्लड में रहने से आर्थराइटिस, रूमाटाइड हो जाता है. और टॉक्सिन अंदर रहने से आपकी एजिंग बढ़ेगी, स्किन पेल हो जाएगी, और आपका फेस भी अच्छा स्मार्ट नहीं दिखेगा. द पोल्यूशन, टॉक्सिन्स, अच्छा बाहर का पोल्यूशन भी आपको तकलीफ देगा. तो आप जैसे इवनिंग में निकलते हैं, ज्यादा पोल्यूशन होता है, आप सुबह ज्यादा जाओ, शाम को मत जाओ, बाहर बहुत पोल्यूशन होता है, उसको हम रोक नहीं पाते. स्मोकिंग एंड अल्कोहल ऑल्सो डिजेनरेट फास्टली. So smoking and alcohol should be avoided as much as you can. So these are the external cause for degenerative change or aging. अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे? कैसे? तो आपको कुछ तो समझ में आ गया कि why we are aging. Then how to take prevention. क्या प्रिवेंशन? तो एक्टिव रहने के लिए आपको हार्मोन बैलेंस करना. तो ब्रेन के हार्मोन बैलेंस होंगे तो नींद अच्छी आएगी. तो आप क्या करेंगे? ब्रह्म मुद्रा, मार्जर आसन, भुजंग आसन, शशक आसन, ये आपका ब्लड फ्लो ब्रेन में बढ़ाएगा, तो आपका नींद अच्छी आएगी. नींद अच्छी आएगी तो रिजनरेशन होगा, तो फ्लैक्सॉन बढ़ेंगे आपके, और आपके बॉडी के अंदर हार्मोन बैलेंस होने लगेगा. कोलेजन अच्छा बनता है नींद होने से, तो हमारे जोड़ अच्छे रहते हैं, दर्द नहीं होता उनके. और हम फ्लेक्सिबल होने से हम कोई भी काम आराम से करते बिना थके हुए. तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी योगासन से आती है.
फिर ब्रेन के दोनों भागों को हम योगासन से एक्टिव करते हैं। जैसा त्रिकोणासन इधर करते हैं तो ये ब्रेन का लेफ्ट ब्रेन काम करता है उसमें, इधर करते हैं तो राइट ब्रेन। तो हमारे योगा करने से दोनों ब्रेन फुल्ली एक्टिव रहते हैं, तो कोई भी लेफ्ट साइड या राइट साइड में डिजनरेशन नहीं होता। तो बहुत बार हम लोग उसको समझते नहीं है, तो दोनों तरफ से करना होता है। प्राणायाम, हमारी जो ऑक्सीजन लेवल है ब्लड में बढ़ने से हेमोग्लोबिन बढ़ता है, तो हेमोग्लोबिन बढ़ने से हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी, तो बार बार जुकाम सर्दी और आपको फ्लू नहीं होगा, उससे भी डिजेनरेशन होगा। यदि साल भर में आपको फ्लू नहीं हुआ, एक दिन भी बुखार नहीं आया, तो आप कितने एक्टिव है और हेल्दी है। इससे सिर्फ योगा करने से ऐसा पॉसिबल, दूसरे इसमें नहीं होता। आपको सर्दी जुकाम पकड़ लेगी तो क्या, तो उससे भी हर तीसरे महीने में चेंज, वेदर चेंज होते से तो प्राणायाम और एक्सरसाइज योग अभ्यास करने से आपकी वाइटलिटी अच्छी रहेगी, तो आपको कोई भी वायरल पकड़ेगा नहीं जल्दी। और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहने से आपका इंटरनल सिस्टम भी अच्छा काम करेगा। हेल्दी डाइट लेना है आपको, जो जल्दी पच जाती है। आपको जिस एरिया में आप रहते हो उधर जो चीज पैदा होती है वो जल्दी पचती है। जैसे साउथ में चावल ज्यादा होते हैं, तो आप चावल खाओ उधर तो आपको पचेगा, और रोटी मत खाओ। रोटी वाली एरिया में ऐसा है कि ज्यादा रोटी खाओ, चावल कम। हेल्दी डाइट उसी को बोलते हैं। जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया में जो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है उसको खाना चाहिए। दैट विल हेल्प यू टू कीप योर हेल्थ मोर परफेक्ट। एंड अब लोग पानी कम पीते हैं, खासतौर से फीमेल्स। उनको क्या लगता है कि टॉयलेट नहीं है, डोंट गेट योर टॉयलेट, देन यू डोंट ड्रिंक इनफ। तो शॉपिंग में जाते हैं तो सुबह से पानी, डिहाइड्रेशन लीड्स टू स्किन डिसऑर्डर, skinny problem and degeneration on the skin. So if you want to glow your skin, ample water should be taken and hydrated. You should be hydrated about 3 liters of water per day. But then good sleep. If you don't get sleep, you do Brahma Mudra thrice a day. So you will get the good sleep. Brahma Mudra is nothing but neck movement, up, down, right, left, and rotation slowly, 10 times, thrice a day, you will get good sleep. Then if you protection of sun, as you know that sun is good in the morning, or you can tolerate the skin on skin and hormones, and D3 will be enough. If you don't have D3 enough in the bloodstream, then you will get meet to osteoporosis, and that is aging, a big aging of your bones, osteoporosis. So you should expose to the sun to some extent in the morning when you tolerate the sun rays, not in the strong time like after 12. Hormonal balance of female, male, they are a hormonal balance because of their lack of exercise in proper organs, for proper organs. Which organ produces estrogen and progesterone in female? It is a uterus, ovaries. So to improve their circulation in the ovaries and uh, uterus, you should do the asana, not the gym. Gym will not improve your muscular structure, but no hormonal changes will take. Definitely, I am confidently saying. Many girls are doing gym, but they are suffering with PCOD. PCOD is a degenerative changes in the female at the age of 25 and 30. Even after child, one child they get the PCOD and irregular menstrual cycle or hormonal imbalance, whatever they. So, and meditation is the best way to reduce the aging effect. Mind is in your control. If you do meditation every day, 10 minutes, your hormones and activity of mind, which governs the control on all over the body of your body. If your kidneys functioning, means who is demanding, who is commanding your kidneys function? Brain. If brain is seized or brain failed, then, or if you are a patient in coma, he is unable to produce the proper urination. So all organs working under the brain. If you control your brain, thought process and function of the brain, and the hormonal balance of the brains like serotonin, melatonin, dopamine, oxytocin, endorphin. So these hormones will definitely help you to
keep your all the organs of the body in right condition, and they will produce proper hormones, and you will have no degeneration path. Slow degeneration is always there, but you can prevent by doing yoga, meditation, pranayama, and hygiene, cleanliness. शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर बन. The yoga says शौच, cleanliness. You should be clean with system, body. Clean your body, clothes, and place where you live, sleep. Cleaning, शौच, संतोष. Whatever you have, be satisfied with that, and don't bother. Many people are bothering for many other things, and they are improve, not getting good sleep. So don't create the stress. Don't create the stress. And secondly, when you practice in meditation, so you are directly controlling your system, whole body system, because brain is the key for controlling all the hormones, all the system, metabolism, hunger, sleep, sex, drive. Everything is driven by mind. So if you do meditation, all the organs will improve and their function will be a normal standard पोजीशन. हम सबको एक साथ कंट्रोल करते हैं मेडिटेशन करते. तो मेडिटेशन अच्छी चीज होती है. फिर इससे हमारे सुधार होता है, जैसे हम साफ सुथरे कपड़े पहनते और माइंड भी हमारा क्लियर रहता है. हम माइंड में कंफ्यूज नहीं रहते. मेडिटेशन वो भी डिजेनरेट करता है. मेंटल हेल्थ ऑल्सो डिजेनरेट योर. आपकी क्लियरिटी हो माइंड में, तो आपको पजल नहीं होंगे, या आपको कोई ब्लेम नहीं करेगा. क्लियर, सोच, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये योग के जो नियम है, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तो ये अपने आप होने लगे. यदि आप योगा करेंगे तो क्या होगा, माइंड भी आप क्लीन रहेंगे, मेंटली फिजिकली क्लीन लेने से. सोच, संतोष. इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर पोजेशंस, पॉजिटिव थिंग, तो आप ज्यादा डिमांड नहीं करते. यानी आपको 10 जूते आपको काफी होते हैं, तो 20 नहीं इकट्ठे करेंगे, तो उसको बोलते हैं अपरिग्रह. तो योग में ये नियम अपने आप आने लगते हैं और पालना भी पड़ते हैं, पर पालन नहीं पाते हम, तो योगा करने से वो अपने आप आपको शौच, संतोष, तप, आपकी ड्यूटी जो दी है, जो काम दिया है आपको, वो बहुत प्रेम से करेंगे आप यदि योग अभ्यास करते. इसका डिजनरेशन नहीं होगा. यानी आप प्रेम से काम करते. गुस्सा होके काम करेंगे तो आपका क्या होगा, डिजनरेशन होगा, एजिंग जल्दी होगा आपके माइंड में और बॉडी. ध्यान रखो. तो आपको योग अभ्यास करने से आपका संतोष रहेगा आपके अंदर हर बात. और आप फास्ट लाइफ, जो स्मार्ट लाइफ सो कॉल्ड है आजकल, वो भी डिजेनरेट कर रहे हैं. एंजाइटी के हार्मोन ज्यादा, क्योंकि इंटरनेट से हम बहुत फास्ट काम करते हैं. सब कुछ हम बैठे बैठे सब कुछ कर लेते हैं. इस वजह से क्या होता है, फास्ट थिंकिंग होता है. अभी देखो न्यूज रीडर्स इतने फास्ट बोलते हैं कि समझ में नहीं आता क्या बोलते. तो हम लोग बहुत ही तेजी से जीवन जी रहे हैं, फास्ट लाइफ, फास्ट फूड खा रहे हैं. उससे हमारा डिजेनरेशन, शांति नहीं है हमारी. अब किसी को बोल दिया आपने कि शाम को आना, तो आप उसको बार बार फोन करेंगे कि कितने बजे आओगे, आप कहाँ से आओगे, कैसे आओगे, गाड़ी क्या रहेगी आपकी, हाउ यू विल फील टू ड्राइव, कैसे पहुंचे. तो हम लोग एंजाइटी के मरीज हो, ये इंटरनेट की वजह से. 6 जी 6G रैम, 6G और 5G रैम चल रहा है हमारा. बहुत फास्ट काम करता है वो, और हम भी उसकी वजह से फास्ट हो गए, तो वो भी हमको डिजेनरेट कर. तो योग में पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, फालतू का सामान जमा नहीं करना, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य. जब तक बच्चे की जरूरत नहीं हो, सेक्स पे कंट्रोल रखना, ऐसा कहा है शास्त्र. और उसके बाद योगा चित्त वृत्ति निरोधा, आपके चित्त को नियंत्रित करना है, मन को चंचलित नहीं होने देना, वही योग का काम. तो आप चंचल चित्त हो जाएगा तो फिर आपको क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी. ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है,
शुगर बढ़ सकती है, और आप जानते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम, तो सारे जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो सब डिजेनरेट ही करते हैं हमारे और माइंड। तो मैंने आपको सब बताया कि व्हाट टाइप ऑफ डिजेनरेशन टेक प्लेस एक्सटर्नली इंटरनली। फिर हम, क्योंकि हम तो योग के स्टूडेंट्स हैं, तो हमको योग से क्या फायदा ये बताया मैंने। और आप मान लो शुरू में झूठ बोलते हैं और योगा करने लग जाओ तो सच बोलने लग जाओ, ऐसा मैंने एक्सपेरिमेंट किया है रिसर्च। तो सच बोलने लगते, और सारी चीजें जो डिसिप्लिन है योगा की वो अपने आप फॉलो होने लगती। प्रैक्टिकल योगा करना पड़ेगा, आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये तीनों आप बराबर करते हैं अच्छे से रोज ईमानदारी से, तो आपके बॉडी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा। आप सच बोलने लगते हैं, आप ईमानदारी से काम करने लगते, तो स्ट्रेस नहीं होगा। अनवांटेड स्ट्रेस क्रिएट करने वाले से दूर रहेंगे आप, वो आप उसके साथ मिक्सड अप नहीं होंगे जो स्ट्रेस क्रिएट कर। जो बीमार है उसके पास नहीं जाएंगे ज्यादा, क्योंकि वो बीमारी के रोएगा तो आपको भी सुनेंगे तो आपको भी नुकसान ही ओनली ऑन। सो यू बी ए गुड स्टूडेंट ऑफ रेगुलर योगा प्रैक्टिस, प्राणायाम, आसन और ध्यान, तीनों चीज। धन्यवाद, मैंने आपको सब बताया और एम्फेसाइज किया कि योगा करो। तो आपको कोई प्रश्न हो तो अभी आप पूछ सकते हैं मेरे से। यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर। सर आपने एंटीऑक्सीडेंट्स के रिगार्डिंग कुछ मेंशन किया था, तो हाउ Thank you, डू वी sir. रिमूव दोस? करेक्ट। एंटीऑक्सीडेंट को ऑक्सीडेंट में कैसे बदलना, उनका पावर कैसे कम करना, जो हमको एजिंग नहीं करने का करेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट तो समझ में आ गया, ऑक्सीडेंट तो समझ में आ गया आपको। ऑक्सीजन का जो रेसिड्यूअल है हमारे ब्रेन, बॉडी में, ब्लड में, मसल में, वो डिजेनरेट करता है, उनके डीएनए तक तोड़ देता है, तो कैंसर भी हो जाता है। तो उसको कैसे हम, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं उसको कट कर दिया था कि वो मैं बताऊंगा बाद में। तो ऑक्सीडेंट कहाँ से मिलेंगे हम, जो एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से मिलेंगे जिससे हमारे बॉडी में उसको हम खत्म कर देते हैं। तो ऑक्सीडेंट बनते हैं बॉडी में, हम उसको बाहर से एंटीऑक्सीडेंट खा के ठीक कर सकते। तो क्या है एंटीऑक्सीडेंट? D3 एंटीऑक्सीडेंट है, कैल्शियम एंटीऑक्सीडेंट है, बराबर कैल्शियम होना चाहिए, बराबर है D3 होना चाहिए हमारे हार्मोन्स में, ब्लड में, और हेमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए। फिर हम ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से लें तो हमारे जो सेल हैं वो डिजेनरेट नहीं होंगे, तो हम बूढ़े नहीं होंगे, एजिंग नहीं होगी। तो हमको खाने में क्या क्या करना, ये सब चीजें। एंटीऑक्सीडेंट बाजार में गोली भी मिलती है, जो कैंसर के रोगियों को एंटीऑक्सीडेंट 3 साल तक खाना पड़ता है, क्योंकि वो सब्जी खाते नहीं हरी ना, वो उनको कैंसर इसीलिए हुआ उनको क्योंकि सब्जी भाती नहीं उनको, एक आध दो सब्जी खाते नहीं, वो भी पूरी कुक होने के बाद, कच्ची कोई चीज नहीं खाते, फ्रूट अच्छे नहीं लगते उनको। तो उनका जो है ऑक्सीडेंट तो बनेंगे बॉडी में, वो कैंसर कैसे हो, कैंसर होते हैं विटामिन A B C D E K F G, ये सब विटामिन, जितने मल्टीविटामिन खाओ उसी को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। और वो बाजार में रेडी है, या तो मल्टीविटामिन या बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट की ब्रांड्स आ रहे हैं। यदि किसी को ऐसा लगता है कि हमारी हेरिडिटरी में कैंसर है, हमारे मदर या फादर या किसी को हुआ था या बुआ को हुआ है, तो आप वो आपको हो सकता है, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट रेगुलर लेना पड़ेगा। तो आप मान लो सब्जी नहीं खाते हो, आप सलाद नहीं खाते हो, फ्रूट नहीं खाते हो, तो बाजार में एंटीऑक्सीडेंट की गोली खा लो, गोली मिलती, रोज एक खाओ, कोई नुकसान नहीं। ये मल्टीविटामिन खा लो रोज। यदि आपको एप्पल अच्छा नहीं लगता, विटामिन E, और तो क्या उसको बोलते हैं, विटामिन E, और आपके पपीते में मिलता है, पपैया। पीपल डोंट लाइक पपैया, अपनी लाइक्स होने की वजह से ही हमको ऑक्सीडेंट मार डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पैदा ही नहीं करते बॉडी में, भेजते ही नहीं बाहर से। यही हमारी गलती है। इसलिए हम एजिंग होता है, बीमार होते हैं, बहुत सीरियस रोग जैसे जो ऑटो इम्यून शुरू हो जाता है। इम्यून सिस्टम हमारा क्या करता है, हमारे उल्टा काम करता है, वो भी हमारे सेल्स और टिश्यूज को मारने लगता है, और हमको बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जिसका कोई क्योर नहीं। तो जो हमारी जो बॉडी के अंदर में इम्यून सिस्टम है, उसको अच्छा रखना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेंट यदि देंगे आप अपने, एंटीऑक्सीडेंट यदि आप अपने बॉडी को सप्लाई करेंगे, तो देन यू कैन रिड्यूस योर एजिंग प्रोसेस इन द बॉडी। कैंसर के एजिंग का रिजल्ट
और तो ये एंटीऑक्सीडेंट आप डायरेक्टली ले सकते हैं और इनडायरेक्टली भी ले सकते हैं। इनडायरेक्टली में आपको मालूम है कि ये गोली लेना है, दवाई लेना है उसकी, और डायरेक्टली मतलब आप सलाद खाओ पेट भर के। पेट भर के कौन सलाद खाए? फिर रसगुल्ला कौन खाए? और कोई क्वेश्चन? सर फ्लेक्स सीड्स आर आल्सो गुड फॉर एज अ एंटीऑक्सीडेंट्स। ओह यस और यस। अभी और हाँ अभी वो इस सीजन ओमेगा में ले 3 है सकते हैं या नहीं? उसमें। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, ओमेगा 3 है उसमें। हार्ट का डिजनरेशन नहीं होता। हार्ट के ऊपर नहीं भी नहीं सर, रिंकल्स आ अभी। जाते, जैसे चेहरे पे रिंकल आते हैं वैसे हार्ट पे भी आते, तो वो भी ओके थक सर, जाता काम कर। समर्स में इज इट गुड टू टेक सर? समर उमर कुछ नहीं होता है, ये सब सीजन भगवान ने बनाया है, और आप सब खाओ। हर सीजन में जो मिलता है वो खाओ। गरम ठंडा ये जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली रबिश, कुछ नहीं काम। आपको गर्मी में गर्म खाना चाहिए या ठंडा खाना चाहिए इसका आप चिंता मत करो, जो खाने का है वो सब खाओ, जो बता रहे हैं। ठीक है सर। अब ओके, कुछ लोग थैंक यू बोलते सर। लहसुन गर्मी करेगा, लहसुन काहे की गर्मी करेगा? लहसुन बहुत एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत बड़ा। सर कच्चा लहसुन आंवला खाओ और रोटी में दबा के। सर आंवला और कच्ची हल्दी भी गुड और है। ये सब सब एंटीऑक्सीडेंट सारा उसमें। सर सुबह को लेते हैं पानी में डाल के तो ठीक है। आप सब जानते हो एंटीऑक्सीडेंट कहाँ कहाँ से मिलते हैं, पर आप जीवन में उतारते नहीं उसको। यू डोंट यूज एज अ प्रैक्टिकल डेली लाइफ। 2 दिन आपने फैक्सीड खा लिया और तीसरे दिन से भूल गए, कहाँ रखा पता ही नहीं। ऐसा भी कर, सर तो बहुत रेगुलर फॉलो अप करना पड़ता। और खास तौर सर से महिलाओं को कहता है कि भूल ही जाते जल्दी, वो डाला कहाँ रखा था और डब्बा फ्लैक्सीड का तो दिख ही नहीं। बहुत डब्बे हैं वहां, ऐसा भी हो जाता। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में हम जी जो रेगुलर करना चाहिए फीडिंग तो बॉडी को वो नहीं कर पाए। यहाँ तक कि रोज पानी पीना चाहिए वो भूल जाते हैं। इतने काम में व्यस्त रहते हैं कि पानी वहीं रखा है हमारे किचन में, और किचन में काम कर रहे हैं पर पानी नहीं पीते हम, टाइम नहीं हो पानी पीने। तो क्या क्या डिहाइड्रेट हो जाएंगे आप, तो डिजनरेशन हो जाएगा, स्किन पेल हो जाएगा, स्मार्ट नहीं होएगा। और कोई प्रश्न? सर मैं सर मेनोपॉज के टाइम पे जो हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? इतना करना चाहिए और उससे कोई भी डिसबैलेंस नहीं होता। देखो मेनोपॉज इज ए नेचुरल फिनोमेना। तो आप योगा जी करते रहोगे तो मेनोपॉज, पहली बात तो मेनोपॉज जल्दी आएगा नहीं। आपके हार्मोन्स अच्छे बने रहेंगे, सेक्स करेज बना रहेगा, आप लाइफ को एंजॉय कर सकते। परंतु मान लो आता भी है तो वो नेचुरल आना चाहिए, उससे कोई हडल्स नहीं होने। वो होते काय के लिए कि हार्मोन बराबर नहीं थे, तो ब्लीडिंग ज्यादा होता है या फिर होता ही नहीं तो या स्पॉटिंग होता है, कुछ कुछ गड़बड़ी होती है, तो उसको आप योगा से करेक्ट कर सकते। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। मेनोपॉज से एजिंग होता है कोई नो डाउट, पर उसको प्रिवेंट कर सकते हैं आप। पर आपको मालूम होना चाहिए कि डाइट क्या लेना, एक्सरसाइज कौन सी करना होगा, ठीक है। नींद बराबर लेना, और ज्यादा ज्यादा रेस्ट नहीं करना। क्यों? मेनोपॉज जब आता है तो रेस्ट, महिलाओं में रेस्ट ज्यादा होने लगता है। क्यों? क्योंकि लड़कियां होती बड़ी तो वो हेल्प कर देती, खाना बना लेती, तो आप बैठी हो टीवी देख रही हो, या बहू आ जाती 40-45 की उम्र के बाद, महिलाओं को सपोर्टिंग हैंड्स मिलने लग जाते घर के लोगों को। तो बहू है, बेटी है बड़ी, वो सब काम निपटा लेती, तो आप बैठे हो चुपचाप कुछ नहीं कर रहे, खाली आप वहीं बैठे हैं जहां मिल जाती। तो ये भी डिजेनरेशन, एजिंग होता है उसमें। यू शुड बी एक्टिव। तो हमको हमको हमने क्या क्या बोलते, 40 साल से हमने यही काम किया, अब नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं? 40 साल से तो रोज खाना बनाया हमने, नहीं बनाया। ये नहीं है नहीं ऐसा, सर, आज तो सब वर्किंग है, लड़कियां भी और बहू भी। वो गिव अप नहीं दे करना चाहिए। तो नहीं तो आपका एजिंग फास्ट होएगा, फिर मेनोपॉज में वजन बढ़ जाता है, क्योंकि सपोर्टिंग हैंड आ गए आपके। बेटी बड़ी हो गई, 20 साल की हो गई, और बहू भी आ गई, तो फिर क्या होता है, हमारे जो हाथ पैर चलना कम हो जाता है, और मेनोपॉज हो गया तो, और खाना बराबर बढ़िया मिल रहा है दोनों टाइम, और एक्सरसाइज जीरो है, एक्टिविटी जीरो है, तो क्या होगा? वजन बढ़ता। तो बहुत लोग ब्लेम करती, बहुत महिलाएं ब्लेम करती कि मेनोपॉज से हमारा वजन, वाह वाह क्या बात। सब सब गलत है, रॉन्ग। सर लेकिन इस टाइम पे सर नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है,
पसीना आता है नींद तो थोड़ी थोड़ी देर आप में। नहीं, ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल, पर हम उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो वो करेक्ट करने के लिए यदि कोई साइंटिफिक प्रोग्राम है, वो है योगा पे। ऐसा नहीं कि मैं योगा प्रमोटर हूँ इसलिए ऐसा हो, आप दूसरा कुछ भी कर लेना, आपको नींद आएगी नहीं, पर योगा करो नींद बराबर आएगी, हार्मोन बैलेंस बराबर रहेगा, क्योंकि योगा एक एक ऑर्गन्स के लिए है हमारा। अब आप तो जिम सर में जाते जैसे हो, रात पैर की टांगों की आधा हाथ की एक्सरसाइज करते हो, आप यूट्रस की और ओवरीज के लिए क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो जिम में जाके। तो योगा में क्या है, त्रिकोणासन आपका यूट्रस में ब्लड सप्लाई करता है, पादहस्तासन करता है, और मार्जर आसन करता है। ये चीज वहां थोड़ी होती है। इसलिए योगा इज द बेस्ट वे टू करेक्ट योर हार्मोनल बैलेंस एंड एजिंग प्रोसेस विल बी रिड्यूस। जी सर, थैंक यू सर। ऑटो इम्यून सिस्टम को ठीक रखना, इसको इम्यून सिस्टम को ऑटो मत होने दो, ऑटो होते से ही बीमार हो जाओ। सर एंटी एजिंग के लिए कोई बेस्ट आसन बता दीजिए। एक आसन है, चेहरे का एंटी एजिंग करना रुकना चाहते हो कि पेट का कहाँ का है? मेरे सर को चेहरे का भी और पेट का स्पेसिफिक भी। स्पॉट बताओ मेरे को। हाँ जी, चेहरे का भी और पेट का भी। चेहरे का भी और पेट का भी, दोनों है। हाँ जी। चेहरे के लिए आप बिगर तकिए से सो शवासन, एजिंग नहीं होगा। जी तकिए से एजिंग होता है, तकिया ऐसा लगाते से ये चेहरे ऐसी हो जाते, ऐसा दबता है, आंख में डिजनरेशन हो जाता है, जल्दी चश्मा लग, और यहाँ रिंकल आता। तो आप ब्रह्म मुद्रा दिन में 3 बार करो और शवासन में सो रहा, तो आपका फेस का जो है, और सिंहासन, सिंहासन ठीक है करो। सर। ठीक एक्सक्यूज है, में ब्रह्म कैसे करना है? गिर गया, पन्नी में से निकल गया। पेट का टोनिंग अप करना है, आप डिजनरेशन है, आपके पेट की मसल लटक रही है, तो सबसे ठीक है पहले सर। आप डाइट पे कंट्रोल करो। भरपेट मत खाओ, आधा खाना। आप 2 रोटी खाते हो तो एक करो, देखो। और उत्तान पादासन, पाद अंगुष्ठासन, मुग्दल आसन, दोनों पैर उठा के रोटेट करना, और दोनों पैर की साइकिलिंग करना 20 बार, सीधी और 20 बार। उससे आपकी जो डिजेनरेशन है आपके बेली के ऊपर, वो कम है। ठीक और है सर, थैंक यू। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना, चबा के खाना, पेट पूरा खाली हो जाना चाहिए, तभी आपको ये एक्सरसाइज योगा का प्रैक्टिस का लाभ मिलेगा। डिजेनरेशन से एजिंग पेट का जो है, वो रिंकल्स वगैरह जो होते हैं आफ्टर डिलीवरी वगैरह, वो सब साफ हो जाते हैं यदि आप सर फोकस करते हैं। रागी इज गुड फॉर हेल्थ। वो वेरी गुड। आपका पेट अब पतला हो जाता है रागी से, 2 इंच। 1 महीने रागी की रोटी खाओ, 2 इंच पतले हो जाए, पेट के ऊपर डिजेनरेशन, फैट खत्म हो जाता है। रागी बहुत अच्छी है, मैं खुद ही रागी खाता हूँ। ठीक है सर, यही था। थैंक यू सर। ओके। Okay? कोई प्राणायाम है एंटीऑक्सीडेंट? I think, sir, now it's 11:08. We have taken more time. So, thank you everyone for attending today's session, and thank you so much, sir. And it is very informative session. Something that we have learned today, that we have to correct our diet externally, internally. We have to take care of our body for anti-aging specifically, and Lifestyle, do we have to yoga correct the regularly. lifestyle. Yes. Yes, we have to change our lifestyle, the way we were living and now. And actually, we have to do a lot of yoga also. I mean, people are doing it here. So, thank you so much. And thank you, everyone. Happy Sunday. Thank you, sir. We'll meet again थैंक sometime यू, in बाय बाय। future. Thank you. Bye bye. थैंक Okay, यू, thank you so much. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर। हैप्पी रामनवमी सर। थैंक यू मैम। Thank you.